Okay, so this is the final part of chemistry chapter 2, chemical bonding, and we are going to begin with a doubt in the exercise, in-text exercise of the second in-text. Question number 10 was doubt of some student. Explain the following. Electrovalent compounds conduct electricity. So why do electrovalent compound conduct electricity? Because electrovalent compounds are made from ions. Okay, so whenever these electrovalent compounds are dissolved in water, their aqueous solution conduct electricity. So electrovalent compound do not conduct electricity in any other state, but only in aqueous solution state, because electrovalent compound gets separated into ions, and these ions are responsible for the conduction of electricity. Okay, so that's the reason, presence of ion. Second, electrovalent compounds have high melting point and boiling point, while covalent compounds have low melting and boiling points. So the answer is given over here: boiling point and melting point. See, electrovalent compound, there exists a strong force of attraction between oppositely charged ions. So a large amount of energy is required to break the strong bonding forces between the ions, and that's why the electrovalent compound have high boiling and high melting point. But in case of covalent compound, the boiling and melting point are low, because the weak forces of attraction between binding molecules is there, and that's why less energy is required to break the force of bonding. So that's the reason of the second part. B part of question number 10, part number C. Electrovalent compounds dissolves in water, whereas covalent compound do not dissolve in water. Uh, let's talk about dissolution in water, that is solubility. So electrovalent compound are soluble in water because water is polar compound, polar covalent bond. It decreases the electrostatic force of attraction, resulting in free ions in aqueous solution, and hence electrovalent compounds dissolve. But covalent compounds are insoluble in water generally, and they dissolved in organic solvents, because organic solvents, one example of organic solvent is CS2, carbon disulfide. They are non-polar, and hence these dissolve in non-polar covalent compounds. Non-polar covalent compounds is organic solvent, and covalent compounds, they dissolve well in organic solvents. Okay. Part D. Electrovalent compounds are usually hard crystals yet brittle. Hard crystals yet brittle. Mm, yeah, they are hard solids consisting of ions. Maybe this is the reason, because of the strong electrostatic forces of attraction between their ions, which cannot be separated easily. But why are they brittle? Why are they brittle? So nothing is given about the brittleness. Let's search it online. Polar covalent compounds conduct electricity. Okay, the answer will not be given in that table. Polar covalent compound conduct electricity because on dissolving polar covalent compound in water, the slightly electropositive and slightly electronegative uh, particles get separated, and they get converted into ion. With this process is known as ionization. So due to ionization of the molecules or the particles of polar covalent compounds, uh, they begin to conduct electricity when dissolved in water. Okay, now let's find why electrovalent compounds are usually hard crystals yet brittle. Okay, why electrovalent, see why electrovalent compounds are brittle.
They have oppositely charged ions that are held tightly by strong electrostatic forces, which make it a closely packed structure. The thermal energy of the ions is less, and so they remain uh, are closely bound to form a crystal lattice. Therefore, okay, let's check the full answer over here in this site. Maybe that answer was not full, complete. Okay, electrovalent compounds have oppositely charged ions that are held tightly by strong electroforces, which make it a closely packed structure. The thermal energy of ions is less, and so that they remain closely bound to form crystal lattice. Therefore, electrovalent compounds are hard. Okay. However, when a strong external force is applied, the layers of ionic solids get displaced. This displacement leads to electrostatic repulsion in between the layers, and therefore electrovalent compounds are said to be brittle. Hmm. Okay, so that I think was not part of your textbook information, but we got this idea about the brittleness of electrovalent compound from outside. Anyways, now I think we should move ahead with coordinate bond. The definition of coordinate bond. Let's begin with that. Coordinate bond, the bond formed between two atoms by sharing a pair of electrons provided entirely by one of the combining atoms but shared by both, is called a coordinate bond or dative bond. For example, ammonium ion NH4 plus, hydronium ion H3O plus. दो एटम के बीच में बॉन्ड बनता है, शेयरिंग से बॉन्ड बनता है, बट ये शेयरिंग होने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो एंटायरली वन ऑफ द कंबाइनिंग एटम से ही शेयर किए जाते हैं. दूसरा वाला जो एटम है वो कुछ शेयर नहीं करता. ठीक है, प्रोवाइड करने वाला एटम एक है, शेयर करने वाले दोनों. ऐसे बॉन्ड्स को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, और इसके दो एग्जांपल ही दिए हैं, हमें दो ही पढ़ने हैं, NH4 प्लस और हाइड्रोनियम आयन. तो कंडीशन क्या होती है फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये देख लेते हैं, और फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम स्टडी करेंगे. देखो, one of the two atoms must have at least one lone pair of electrons, that is ammonia और वाटर. इन दोनों के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. लोन पेयर मतलब क्या होता है? लोन पेयर का मतलब है two electrons which are not shared with any other atom. Two electrons which are not shared with any other atom. A pair of electron, देखो यहाँ पे lone pair का definition है. A pair of electrons which is not shared with any other atom is known as a lone pair of electrons. But it is provided to other atom for the formation of coordinate bond. तो लोन पेयर होना, एटलीस्ट एक लोन पेयर होना बहुत जरूरी है. दूसरी कंडीशन क्या है? Another atom should be short of at least one lone pair of electron. For example, hydrogen ion H plus. H plus आयन में एक लोन पेयर की कमी है, क्योंकि H प्लस आयन के पास सिर्फ एक प्रोटॉन होता है. दो इलेक्ट्रॉन चाहिए उसके आउटर मोस्ट शेल में, फर्स्ट शेल में, वो नहीं होते उसके पास. मतलब उसको दो इलेक्ट्रॉन की कमी है, लोन पेयर की कमी है. ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का दूसरा डेफिनेशन देखो. अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैन आल्सो बी डिफाइंड as a bond formed between an ion and an atom of a polar covalent molecule with one or more lone pair of electrons. कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके बीच में बनता है? एक आयन के बीच में और पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल के एटम के बीच में, हमेशा. ठीक है, विथ वन और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जो पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल के पास एक या एक से ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसके बीच में और एक आयन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है. कोऑर्डिनेट बॉन्ड has properties of both covalent and ionic bond, and therefore it is
known as co-ionic bond. इसका दूसरा नाम co-ionic bond भी है. क्यों? Because it has property of covalent as well as ionic bond. The atom which provides the electron pair for the formation of coordinate bond is known as the donor. मतलब ammonium ion, ammonium ion, right? Ammonium ion ही बोला था, right? नहीं, ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है अमोनियम आयन. अमोनिया और वाटर ये दोनों डोनर है. एंड द एटम और आयन शेयरिंग द डोनेटेड इलेक्ट्रॉन पेयर इज नोन एज एक्सेप्टर. हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर है. ठीक है, चलो अभी हम लोग अलग से देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन. अमोनियम आयन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेटिव और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, याद रखना. ठीक है, सो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज NH4 प्लस. क्या नाम है इसका? अमोनियम आयन, विच इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट या फिर डेटिव या फिर को आयोनिक बॉन्ड. एग्जाम्पल नंबर 1. ठीक है, क्या है एग्जाम्पल इसका? देखते हैं. NH4 प्लस. अब NH4 कैसे बना, अमोनियम आयन कैसे बना? इसके लिए सबसे पहले वी हैव टू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल. So ammonia molecule is nothing but NH3, नाइट्रोजन सेंटर में रहेगा. नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ठीक है, और इसमें से जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है वो हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन क्या करता है? शेयर करता है. 3 इलेक्ट्रॉन्स ईच हाइड्रोजन के साथ कौन शेयर करता है? नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है. उसमें अगर तुम काउंट करोगे कितने इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में, 1 2 3 4 5 6 7 8. तीनों हाइड्रोजन्स भी स्टेबल है. आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन है. लेकिन इस अमोनिया के मॉलिक्यूल के पास, ये पूरा अमोनिया का मॉलिक्यूल है, उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है. ये आउटर मोस्ट शेल में अगर तुम देखोगे अमोनिया के मॉलिक्यूल के पास 2 इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉन शेयर्ड है. किसी के साथ शेयर नहीं हो रही है 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसी को हम क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी कॉल दिस? लोन पेयर. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लोन पेयर. ठीक है, चलो अब ये लोन पेयर को आगे हम लोग ले लेते हैं. ठीक है, तो ये लोन पेयर वाला अमोनिया का एक मॉलिक्यूल है. अब डेफिनेटली अमोनिया का मॉलिक्यूल अगर तुम देखोगे ना तो इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है जो स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव और स्लाइटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. मतलब ये जो मॉलिक्यूल है इट इज पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल. ठीक है, अब इसमें क्या होगा? बिकॉज इट हैज अ लोन पेयर, कोई एक ऐसा आयन जिसको एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो खुद से कुछ शेयर नहीं कर सकता लेकिन उसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. वो अमोनिया के पास आएगा और रिक्वेस्ट करेगा कि यार प्लीज मेरे को ये 2 इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर कर ले. अब ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन को ये 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है. नाइट्रोजन रिक्वायर्स दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स. बट अगर एक हाइड्रोजन का आयन जिसके आउटर मोस्ट शेल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो अगर अमोनिया को अप्रोच करता है और बोलता है कि यार मेरे को प्लीज 2 इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर कर ले, तो अमोनिया को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. क्योंकि अमोनिया का तो आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है बेसिकली नाइट्रोजन का. तो नाइट्रोजन बोलेगा ठीक है चलो आ जाओ. तो हाइड्रोजन यहाँ पे ये H प्लस आयन जो है यहाँ पे सेट हो जाएगा. ठीक है, सो अमोनिया शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स
विच इज प्रोवाइडेड एंटायरली बाय नाइट्रोजन, एंटायरली, इसमें हाइड्रोजन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, हाइड्रोजन सिर्फ शेयर कर रहा है वहां पे, ठीक है। इट इज अ गेस्ट, तुम्हारे घर पे मेहमान आते हैं, ठीक है, वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते मेहमान, ठीक है, नो ऑफेंस टू एनी मेहमान ओवर हियर बट वो मेहमानों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, वो तुम्हारे घर पे रहता है, तुम्हारे घर पे खाता है, पीता है, सोता है, और सब कुछ करता है, लेकिन वो उसको बोलो बर्तन करो तो बोलते हो क्या तुम? बोलोगे तो भी नहीं करेगा, बोले यार मैं तो गेस्ट हूँ यार, मेरे से मत कराओ, ठीक है। तो वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता, तो ये सिर्फ एक मेहमान है, हाइड्रोजन का आयन, वो आके यहाँ पे बैठ जाता है। नाइट्रोजन को कोई इश्यू नहीं है, बोलता है चल मेरा एक रूम खाली है, तू ले ले, कोई टेंशन नहीं है, बट ये अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता, तो ये मेहमान आ गया। लेकिन ये मेहमान अपने साथ एक गिफ्ट लाता है, वो गिफ्ट क्या है? वो गिफ्ट है ये ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज वो गिफ्ट करता है अमोनिया को, अमोनिया को ये पॉजिटिव चार्ज गिफ्ट करता है। तो ये मेहमान के आने से, ऑल्दो मेहमान कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, ऑल्दो ये गेस्ट कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है, लेकिन इसके आने से क्या होता है, ये पूरे मॉलिक्यूल को एक पॉजिटिव चार्ज मिल जाता है, घर पे एक नई रोशनी आ जाती है, घर पे सब लोग खुश रहने लगते हैं, क्योंकि ये मेहमान बहुत ही फनी है, ये मेहमान बहुत पॉजिटिव है, ये मेहमान बहुत एनर्जेटिक है, तो अच्छी बात है, मेहमान आया अच्छी बात है, कुछ कंट्रीब्यूट मत कर, पॉजिटिव चार्ज ही दे दे, ठीक है। सो NH4 बन जाता है अब, क्योंकि 4 हाइड्रोजन हो गए, और ये पूरे पे एक चार्ज आ जाता है 1+ या फिर सिर्फ प्लस, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अमोनियम, अमोनियम बोलते हैं, अमोनियम आयन, ठीक है। अमोनियम आयन की वैलेंसी कितनी है? 1+, ऐसे बनता है अमोनियम आयन। कौन सा बॉन्ड बोलेंगे इसको? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दैट इज हाउ अमोनियम आयन इज फॉर्म। पहले अमोनिया था जिसके पास लोन पेयर थी, फिर आ गया हाइड्रोजन का आयन, जिसने अमोनिया ने, जिसको नाइट्रोजन ने बेसिकली जिसको एंट्री दे दी घर पे, और उसने 2 पेयर शेयर कर लिए, जिसमें कंट्रीब्यूशन हाइड्रोजन आयन का कुछ नहीं था। अब नाइट्रोजन को कोई इश्यू नहीं है, बिकॉज उसका आउटरमोस्ट शेल अभी भी फिल्ड है, प्लस पॉजिटिव चार्ज भी मिल रहा है, अमोनियम आयन बन गया। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। इसका एक सिंबल है, वो भी हमको देखना है, कैसे अमोनिया का सिंबल हम लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, this bond which is formed between nitrogen atom in ammonia and the hydrogen ion is a coordinate bond, and it is represented by uh, arrow, whereas a covalent bond is represented by dash। तो मतलब हम लोग को एक एरो डालना पड़ेगा। एरो कैसे डालेंगे हम लोग? देखो, यस, कैन यू सी दिस? ये नया वाला हाइड्रोजन, और वहां पे हमने एक एरो डाला है, इसको मैं तुम्हें अलग से ड्रॉ करके बता देता हूँ, ताकि ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। ठीक है, सो कैसे बनाएंगे अमोनियम आयन को? N, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड, एक्चुअली हम लोग को बॉन्ड बनाना चाहिए, बॉन्ड बनाने के लिए सिंगल लाइन, सिंगल बॉन्ड है इसके लिए, N सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और यहाँ पे एरो डाल के हाइड्रोजन। मतलब ये जो चौथा वाला बॉन्ड है, वो सिंगल बॉन्ड नहीं है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जहाँ पे एरो दिखाता है कि नाइट्रोजन कंट्रीब्यूटर है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने प्रोवाइड किए, ठीक है, नो कंट्रीब्यूशन इज देयर फ्रॉम हाइड्रोजन पार्ट। सो दैट इज द सिंबल ऑफ डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन द केस ऑफ अमोनिया, ठीक है। इसके बाद और एक एग्जांपल है, दैट इज हाइड्रोनियम आयन एंड लोन पेयर इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये भी हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल, हाइड्रोनियम आयन,
H3O प्लस। ठीक है, कैसे बना होगा ये हाइड्रोनियम आयन? तो हमारे पास पहले वाटर था H2O। ठीक है, वाटर बनाने के लिए हम ऑक्सीजन बनाएंगे। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, सो एक 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहाँ पे शेयर करेगा वो एक हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे शेयर करेगा दूसरे हाइड्रोजन के साथ, और 2 लोन पेयर है। कितनी लोन पेयर है अब? लोन पेयर 1 एंड लोन पेयर 2। अब मैंने तुम्हें बताया था कि किसी भी कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड को अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है तो उसकी फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है कि वो उसके पास एटलीस्ट एक लोन पेयर होनी चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट एक लोन पेयर उसके पास होनी चाहिए। यहाँ पे तो वाटर के पास 2 लोन पेयर है, मतलब अच्छी बात है यार, 2 लोन पेयर है, बहुत बढ़िया है। चलो हो जाएगा काम अपना। ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास जो 2 लोन पेयर है, ये क्या करता है? इसके आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट होने के लिए ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन को जगह देता है यहाँ पे, इन a condition that oxygen will contribute both the required electron to the hydrogen ion, and hydrogen ion will not contribute anything to the molecule of oxygen, but in 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 uh, in return it will provide positive charge to the water molecule. So अब क्या होता है कि ये कुछ हुआ ऐसा, ऑक्सीजन था जिसका एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ था, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ था, और यहाँ पे एक डेटिव बॉन्ड बन गया। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया और पूरे मॉलिक्यूल को चार्ज मिल गया, तो ये बन गया एक रेडिकल। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं H3O, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है, H3O प्लस, और इसका नाम है, इसका नाम याद रखना, बहुत फेमस है, आगे बहुत काम आएगा, हाइड्रोनियम आयन। क्या नाम है इसका? हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो हाइड्रोनियम आयन में जो कंट्रीब्यूटिंग एटम है वो ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, उसमें से एक वो कंट्रीब्यूट कर देता है हाइड्रोजन आयन को। हाइड्रोजन आयन उसके रिटर्न में वाटर के मॉलिक्यूल को पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करता है, एंड दिस इज हाउ द डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज फॉर्म्ड। ये पूरा इसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, अब देखो इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल था वो तो ऑलरेडी पोलर कोवेलेंट कंपाउंड था, उसके साथ एक आयन आ गया, तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, राइट। अब ये जो वाटर है, इसकी भी एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, वाटर क्या करता है देखो, when acid is added to water, listen to me very carefully, when acid is added to water, strong dipole attraction between slight positive and slight negative charge occurs between the polar water molecules and the polar acid molecules. As a result, such a dipole as a result of such a dipole interaction, the hydrogen ion gets released from the polar bonds of the acid molecule. सो HCl को जब भी कुछ ड्रॉप्स HCl के पानी में डालोगे तो बहुत सारे हाइड्रोजन एटम रिलीज हो जाते हैं, क्लोरीन एटम्स भी रिलीज हो जाते हैं। द हाइड्रोजन आयन स्पॉन्टेनियसली एड्स टू वन ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। ये हाइड्रोजन एटम आयन जाके
वाटर के किसी मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइन हो जाता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड हाइड्रोनियम आयन बना देता है। सो ये कब होता है कि जब भी वाटर के किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी वाटर के कोई भी वाटर में जब हम लोग एसिड के कुछ ड्रॉप्स ऐड करेंगे, हाइड्रोनियम आयन बनते ही है। ठीक है, ये हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर हो गया। Addition of the released hydronium ions to the lone pair of electrons of oxygen atom of the polar water molecule leads to the formation of hydronium ion. ठीक है, H plus plus H2O gives H3O plus. वैसे तो हम रिएक्शन लिख सकते हैं, अमोनिया का भी रिएक्शन हम लिख सकते हैं, हमने लिखा नहीं था, लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये अमोनिया का फॉर्मेशन जो मैंने तुम्हें बताया था, इसका रिएक्शन क्या होगा? इसका रिएक्शन होगा NH3 प्लस H प्लस होना चाहिए, NH3 प्लस H प्लस गिव्स NH4 प्लस। ठीक है, वैसे ये केमिकल इक्वेशन हम लोग वाटर के केस में बना सकते हैं। H2O प्लस H प्लस गिव्स H3O प्लस, correct? So that's your polar covalent compound of what hydronium ion, sorry, not water. Okay, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन क्या होता है? तुमने सुना होगा, तुमने देखा भी होगा, वैलेंसी चार्ट में पढ़ा भी होगा इसके बारे में, OH माइनस। ये कैसे बनता है? द हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोक्साइड आयन इज OH माइनस। इट इज फॉर्म्ड व्हेन वन हाइड्रोजन आयन H प्लस इज रिमूव्ड फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में से एक हाइड्रोजन का आयन जब रिमूव होता है तो हाइड्रोक्साइड आयन बनता है। ठीक है, H plus or OH minus. When H plus is removed from water molecule, the shared pair of electrons remains with oxygen, as oxygen is more electronegative and thus hydroxyl ion has negative charge. जब भी H plus आयन वाटर में से रिमूव हो जाता है तो एक हाइड्रोजन आयन जब रिमूव हुआ तो हाइड्रोक्सिल आयन बनता है। ठीक है, बिकॉज हाइड्रोजन आयन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव था तो जो बचा हुआ चार्ज रहेगा हाइड्रोक्सिल आयन पे वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव पॉजिटिव ये दोनों मिलके वापस वाटर बनाएंगे विच इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये कंटिन्यूअस खेल चलता ही रहता है। सो बेसिकली क्या हो रहा है, वाटर में सेल्फ आयोनाइजेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल कंटिन्यूअसली H प्लस और OH माइनस में कन्वर्ट होते रहते हैं और सिमिलरली H प्लस और OH माइनस कंबाइन होकर वापस वाटर मॉलिक्यूल बनते रहते हैं। और एक चीज भी होती है, ये H प्लस दूसरे H2O के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोनियम आयन भी बनाता है। तो अगर हम लोग इसको दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें, कौन से दोनों इक्वेशन को, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों को अगर हम कंबाइन करके देखें तो क्या चीज हो रहा है? सो बेसिकली वी हैव गॉट 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, अगर दोनों साइड में ऐड करें तो H2O प्लस H2O, कितने वाटर मॉलिक्यूल है? 2। इनमें से हमें कंटिन्यूअसली क्या मिलता है? हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोनियम हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोनियम हाइड्रोक्सिल, और ये वापस कंबाइन होकर 2 वाटर मॉलिक्यूल में भी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वाटर के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जिससे वाटर के मॉलिक्यूल हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्सिल आयन में कन्वर्ट होते हैं, वापस हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्सिल आयन कंबाइन होकर वाटर के मॉलिक्यूल में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। ये कंटिन्यूअस रिवर्सिबल रिएक्शन वाटर के अंदर चलता रहता है। ठीक है, सो वाटर हैज दिस स्पेशल प्रॉपर्टी एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज सेल्फ आयोनाइजेशन। ठीक है, इसमें हम लोग ये सेल्फ आयोनाइजेशन क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज सेल्फ आयोनाइजेशन हैज गॉट this new ion which you have just studied, which is the byproduct of, or which is the result of coordinate bond, which is hydronium ion. तो water के self ionization से hydronium ion बनता है, which is a positively charged byproduct of water, result of self ionization, and a negatively charged byproduct which is hydroxyl ion. ठीक है, so hydroxyl ion is basically formed by the self ionization of water. ऐसे तुम अगर बोलो तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। So that was your final part of chapter 2, chemical bonding. चैप्टर खत्म हो चुका है। फाइनल पार्ट छोटा था, as we
already knew. तो अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स इन द नेक्स्ट वीडियो। और तब तक मैं तुम्हें इसका होमवर्क दे देता हूँ ताकि तुम लोग थोड़ा सा काम पे लग जाओ। अच्छा, मुझे थोड़ा लेट हो गया वीडियो डालने में और नेक्स्ट ये टॉपिक रेडी करने में, बिकॉज तुम्हारी टेस्ट में चेक कर रहा था और उसमें काफ़ी टाइम जाता है। सो ये पूरा प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, टेस्ट टेकिंग प्लस वीडियो बनाना, प्लस मेरे पास कोई हेल्प नहीं है अभी। ठीक है, मैं सारे काम खुद कर रहा हूँ। तो बी वेरी वेरी पेशेंट, कोई जल्दी मत करो, क्योंकि टाइम अभी बाहर बहुत ख़राब है, लॉकडाउन बढ़ रहा है। ठीक है, लॉकडाउन बढ़ रहा है मतलब घर से बाहर जाने की भी परमिशन नहीं है। ऐसे कंडीशन में अगर तुम सोचोगे कि मुझे फटाफट सिलेबस ख़त्म करना है, सी एवरीबडी हैज़ गॉट देयर ओन लिमिटेशंस। और ऐसी बात होगी कि जब तुम 11th में आओगे, अगर तुम मेरे साथ कंटिन्यू कर रहे हो, तो 11th के सारे वीडियोस तुम्हें रेडी मिलेंगे तब। ये प्लस पॉइंट है, मतलब नेक्स्ट ईयर बिफोर योर एग्जाम स्टार्ट्स वी कैन स्टार्ट 11th स्टैंडर्ड एंड फिनिश इट, एंड वी कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये मेरा टारगेट है, मेरे सारे बच्चों को मैं ये करवाना चाहता हूँ, क्योंकि अब हमारे पास एक बहुत स्ट्रांग डेटाबेस बन चुका है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए। तो I want you to support me with that, and I'm in return I'm supporting with you to you with this excellent videos which gives you all the information, and also I'm checking your papers which were not checked by me till last year. अब मैं कर रहा हूँ, खुद कर रहा हूँ। मेरे साथ तुम्हारे लाइव क्लास में हम लोग पेपर भी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इतनी सारी हमें अगर जब फैसिलिटीज मिलती है, तो मुझे तुमसे एक एक्सपेक्टेशन है दैट यू आर गोइंग टू support me with the speed with which I'm going. I can go faster but I don't want to, because मुझे ये सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करके फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू गिव यू द एक्सरसाइज राइट नाउ। आई होप यू सॉल्व विद इन टाइम एंड सबमिट, and I'm going to continue with chemistry, one more chapter, acid bases and salts, and then move to maths, then again physics and again chemistry, to finish the first leg of our syllabus completion. We might be 15 days or a month late than the usual thing, which is not bad, because some syllabus is cut. So we are going to finish by December. We are going to finish all our syllabus. And that's definitely going to happen. All right then. See you later. Bye bye.